Now, in the last class, what we talked about was the movement of water molecules from the root hair cell to the xylem vessel, and then we talked about कि अच्छा अब जब भी हमारे पास xylem vessel के अंदर हम water molecules आ गए हैं, how are they basically going to go up, right? So we discussed a few concepts. We discussed the concept of hydrostatic pressure. So what exactly is hydrostatic pressure? It's the pressure applied by the water molecules against the atmospheric pressure. जहां भी हमारे पास volume of water ज़्यादा होगी, when the hydrostatic pressure is going to be more, right? सिमिलरली अगर एक वेसल के अंदर इन अ सिंगल वेसल हमारे पास अगर एक जगह लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होगी और दूसरी जगह लिक्विड की वॉल्यूम कम होगी, तो इन दैट पर्टिकुलर वेसल एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा. Now, the place where the volume of the liquid is going to be high, that's going to have a higher hydrostatic pressure. The place where the volume of the liquid is going to be low, that's going to have a lower hydrostatic pressure. So what basically happens is that water molecules as a whole body, along with the dissolved substances, move from a region of lower hydrostatic pressure towards a region of higher hydrostatic pressure towards a region of lower hydrostatic pressure, and they do so by the process called as mass flow. अब ये चीज हम लोगों ने कल भी देखी थी कि हमारे पास क्या होता है कि in the xylem vessel, I'm just going to move it a bit back, I hope it doesn't fall. In the xylem vessel, what happens is, initially assuming कि भाई ये xylem vessel completely filled है water के साथ, by one mechanism or the other, this xylem vessel loses water to the atmosphere, right? Or sorry, to the leaf, right? अब leaf is losing water to the atmosphere, वो क्या है? That's another story. फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं? एयर प्रेशर. तो यहाँ xylem vessel के अंदर एयर कैसे आएगी मेरा बेटा मफसाम? So once this water molecules are removed towards the leaves or moved into the leaves, in this particular xylem vessel, हमारे पास दो रीजन्स बन जाएंगे. एक जहां वाटर की वॉल्यूम कम है, वहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम होगा. दूसरी जगह जब वाटर की वॉल्यूम ज्यादा है, वहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा. So these water molecules as the whole body, अच्छा नीचे ज्यादा क्यों है? Because the xylem vessels are being filled with water that is coming from where? The root hair cells, right? So the xylem vessel or the water molecules from the bottom of the xylem vessels, along with the dissolved mineral ions, are going to move towards a region of lower hydrostatic pressure that is the top of the xylem vessel by the process of mass flow, right? So this is basically what's happening. Up again now, let's see what is actually removing this water from the top of the xylem vessel. That is something that we call as what? Transpiration. अच्छा, before we talk about transpiration, एक छोटी सी बात हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा concept before we actually talk about transpiration. Let's say I have a plant cell right here. Let's call this cell A. सेल ए के बिल्कुल बराबर के अंदर हमारे पास सेल बी है. सेल बी के बराबर के अंदर हमारे पास राइट हियर वी हैव अ सेल दैट्स कॉल्ड अ सेल सी. ठीक है, ये तो इनकी सेल वॉल्स है ना. इनके अंदर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन्स बना दी. अब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमारे पास जो सेल वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, राइट? नाउ लेट्स से कि भाई हमारे पास ये जो सेल ए है, and rather all the cell walls that we have, all the adjacent cell walls, right, they are moist, they have absorbed water like this. ठीक है. अच्छा, अब मैंने क्या करा? Now let's say I expose cell A to dry air. ठीक है, मैंने सेल A को किससे एक्सपोज कर दिया? मैंने सेल A को ड्राई एयर से एक्सपोज कर दिया. Now because of this dry air, what's gonna happen? ये जो water molecules है ना, they're going to move into the dry air from the cell walls. They're going to move into the dry air. अब मुझे एक बात ही बताओ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल वॉल से ड्राई एयर के अंदर मूव कर रहे हैं, राइट, these water molecules are moving from the cell wall into the dry air. Are they moving through evaporation or are they moving through osmosis? हाँ जी. Are they moving through evaporation or are they moving through osmosis? Okay.
दे डिफ्यूज आउट अगेन एवेपोरेशन से, ठीक है, और डिफ्यूजन, वेरी गुड। व्हाई नॉट ऑस्मोसिस? व्हाई नॉट ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई आर दे एवेपोरेटिंग? तो ये तो वाटर, अब्दुल रहमान, वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो हो रहा है मूव, और थोड़ी कुछ मूव हो रहा है बच्चा। लेकिन ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, क्यों? उससे कुछ भी नहीं होता साम, उससे भी नहीं, आमना, दैट्स नॉट द रीजन। वेरी गुड वनीजा। भाई सेल वॉल्स फुली परमिएबल होती है ना हमारे पास, तो ये तो सेल वॉल से जा रहा है, देर इज नो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड। सो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारे पास सेल वॉल से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इनटू द ड्राई एयर, they're moving by the process of evaporation, they're basically evaporating, very good, because the cell wall is fully permeable. It's okay Mibsam, it's okay, good job. तो खैर खैर, do we get this? अब पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी चीज, मुझे एक बात ये बताओ, is there a cell membrane between the cytoplasm and the cell wall space? There is, right? तो अब देखो हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, जितना वाटर इनटू द ड्राई एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन सेल वॉल से बाहर निकलेगा ना, राइट, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से थ्रू ऑस्मोसिस दोबारा कहाँ आ जाएंगे? सेल वॉल के अंदर आ जाएंगे। बिकॉज देखो, बिटवीन द सेल वॉल स्पेस इन द साइटोप्लाज्म there is a partially permeable membrane and there is a water potential gradient right here, isn't it? तो अब देखो क्या हो रहा है, सो कैन आई से जितना वाटर ये सेल वॉल ड्राई एयर को लूज करेगी, will the same volume of water be lost by the cytoplasm of cell A? Hmm. Would I be correct if I say this? Yes. राइट, देखो क्या, अगेन 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 तो उसको दोबारा देखो बच्चे लोग, जितना वाटर हमारे पास ये सेल वॉल ड्राई एयर को लूज कर रही है, अगेन थ्रू व्हाट प्रोसेस? थ्रू एवेपोरेशन, उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो साइटोप्लाज्म है ना सेल ए का, वो दोबारा किसको लूज कर देगा? सेल वॉल को। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्डिंग इसमें से नहीं होगी मेरा बेटा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ट्रैगर प्रेशर लूज होने की वजह से होगी मुबसाम। यहां तक किसी कोई मसला? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर? ओके, नाउ अब देखो, अब जितना हमारे पास, अब देखो यहाँ दो ग्रेडियंट्स बन गए ना, जितना हमारे पास सेल वॉल ड्राई एयर को वाटर लूज कर रहा है, उतना ही साइटोप्लाज्म सेल वॉल को लूज करेगा, एंड अल्टीमेटली दिट्स आल्सो गोइंग टू गो आउट इनटू द ड्राई एयर, राइट? इससे क्या सेल ए के अंदर जो वाटर की वॉल्यूम है वो कम नहीं होती जाएगी कंपेयर टू द एडजेसेंट सेल्स? होगी, बिकॉज सेल इज लूजिंग वाटर। सो अब क्या होगा, जितना सेल ए की सेल वॉल एटमॉस्फेयर को वाटर लूज कर रही है, उतना ही सेल ए अपनी सेल वॉल को वाटर लूज करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, उतना ही सेल ए को वाटर लूज करेगा, और जितना सेल बी के अंदर वाटर कम होते जाएगा, उतना ही सेल सी सेल बी को वाटर लूज कर रहा होगा। अब ये कंटिन्यूस चेन चल गई है, ठीक है, जस्ट बिकॉज द सेल वॉल्स ऑफ द सेल ए लॉस्ट वाटर वाया एवेपोरेशन टू द ड्राई एयर। मेक सेंस? ये वाली बात समझ में आ रही है? तो फिर वो बराबर से आ जाएगा मिप्साम, एक तरीके से, हाँ, राइट, एक तरीके से हसन, मैं आ रहा हूँ फुल के वाटर द सेल सी, अगर ये कंटिन्यूली रहा, सेल ए भी प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, सेल बी भी प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, सेल सी भी प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन, व्हाट आई वांट यू गाइस टू जस्ट नो इस एवेपोरेशन की वजह से जो बराबर बराबर वाले सेल्स हैं उनका वाटर पोटेंशियल ऑल्टर हो गया है, because of which cell A loses the water to cell wall, cell B loses water to cell A, and cell C loses water to cell B. Make sense? Right? Up now let's put two and two together, and now let's talk about the process of transpiration. So what exactly is transpiration? By transpiration hai kya? ठीक है? So whenever we talk about transpiration,
तो हम लोग कहते हैं भाई ट्रांसपिरेशन इज द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल का मतलब जो ऊपर होते हैं, इन शॉर्ट फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलराइट, लेकिन कैसा वो एक्सेस लॉस हो रहा है, राइट? अच्छा, अल्टीमेटली द सेल विल डाई, यस एग्जैक्टली बरीटा बेटा। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं हम लोग। फिर हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। इस ट्रांसपिरेशन की वजह से हमारे पास एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है। व्हाट इज दिस ट्रांसपिरेशन पुल? हम लोगों ने लिख दिया, इट्स सिंपली द पुल जनरेटेड वाया ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इसको एक चीज देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम लोग जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर रहे थे तो हम लोगों ने ये एक लीफ की डायग्राम बनाई थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस वंस अगेन एंड पेस्ट इट राइट हियर। आई होप यहाँ आ जाए। आई डोंट थिंक आएगी। ओके, बेटर या अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अच्छा जी। सो या दिस मच फाइन। So we do not need a few things. We do not need these labels. We know what the xylem is. We know what the phloem is. We know our air spaces, right? We know our spongy and palisade mesophils. We know the upper and the lower epidermis. So we don't need these labels, right? So now, अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास ये ट्रांसलेशन हो क्या रही है। ओके, व्हाट इज दिस? वाटर कम आउट ड्यू टर्जिडिटी, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी, इट्स बिकॉज ऑफ, देखो एवेपरेशन हमारे पास सेल वॉल से हो रही है, बिटवीन द सेल्स हमारे पास ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, एंड अल्टीमेटली द प्लांट्स आर गोइंग, इफ दे इनिशियली दे टर्जिड, if they're going to keep on losing water, they're going to turn flaccid better. uh, उनकी अडेप्टेशंस होती हैं, वालेकुम अस्सलाम, उनकी अडेप्टेशंस होती हैं, जीरो फाइट्स होते हैं ना करत बेटे, उनकी अडेप्टेशंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखो हो क्या रहा है, अब हमारे पास हो क्या रहा है। Now, the cell walls of the spongy and the palisade mesophils, the cell walls of the spongy and the palisade mesophils, they are succulent. They have water molecules in them. ठीक है, तो इनकी सेल वॉल्स भी मॉइस्ट होती हैं, like this. खैर यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट वी डू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो just going to remove this. We do not need this anymore. Okay, right? अच्छा अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। अजूमिंग शर्त हमारे पास क्या है कि हमारे पास लीफ के बाहर ये जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारे पास कैसी वाली एयर मौजूद हो, ड्राई एयर मौजूद हो, राइट? नाउ इफ दिस ड्राई एयर इज गोइंग टू डिफ्यूज इनटू द एयर स्पेसेस, अब एयर स्पेसेस के अंदर क्या हो गया है, हमारे पास ड्राई एयर आ गई है, राइट? नाउ इफ दिस ड्राई एयर इज गोइंग टू मूव इनटू द एयर स्पेसेस, well, what walls bete? Abdurrahman, what walls are you talking about, Chanda? Abdurrahman bete? This thing? The guard cells? They're guard cells, mera bacha. Guard cells already opened hai for gases exchanged. ठीक है? These are guard cells. All right?
इट्स ओके, ये ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। अज्यूमिंग कि गार्ड सेल्स ओपन है और एटमॉस्फेयर के अंदर कैसी वाली एयर है, ड्राई एयर है, ठीक है। नाउ आई थिंक इट इज बेटे, आई थिंक इट इज, इफ नॉट इट विल बी प्रॉब्ली अवेलेबल टुमारो। खैर, आयशा बेटा, here come back here. So if there is if there's a movement of dry air on the inside what, inside the air spaces, it's going to cause these water molecules from the cell walls of the spongy mesophils to move out by the process of what, evaporation. Okay, I think I would need to squeeze this a bit. So how are they going to go out? They're going to go out by the process of evaporation. ठीक है। अच्छा, अब मुझे जल्दी से एक बात ये बता दो, इफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल वॉल्स have moved out into the dry air through evaporation, will the dry air remain dry? हाँ जी, will the dry air remain dry? Sorry, no it won't, ठीक है, it won't. Very good. So if it's not going to be dry now, it's going to become कैसी वाली air, it's going to become humid air. तो अब मेरे पास ये जो air spaces है, इसके अंदर instead of dry air अब मेरे पास कौन सी वाली air आ गई है, कौन सी वाली air की concentration ज़्यादा हो गई है, dry air, ठीक है, sorry, humid air. Make sense? Very good, very good. अब देखो, अब before we go further, before we talk about anything else, मेरे पास एक gradient बन गया है ना। कैसा gradient बना है इसको देखो। In the atmosphere, the humid air is less in concentration, while the humid air is in a high concentration in the air spaces. Similarly, in the air spaces, there is a low concentration of dry air, but the dry air in the atmosphere is in a higher concentration. So अब क्या होगा, diffusion हो जाएगा. The humid air is going to go out into the atmosphere from the air spaces, from a region of high concentration towards a region of low concentration. उतनी ही देर के अंदर जो dry air atmosphere में होगी, it's going to go into the air spaces again via diffusion. और higher to lower gradient कह लो, higher to lower concentration gradient कह लो, that's the same thing, ठीक है। खैर, coming back here, तो हमारे पास diffusion हो रहा है, right? अब देखो, जितना ज्यादा, व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज, देखो जितना ज्यादा ड्राई एयर एंटर होगा ना, उतना ही ज्यादा एवेपरेशन होगा, उतना ही ज्यादा सेल वॉल्स वाटर लूज करेंगी। अब नाउ जितना हमारे पास सेल वॉल्स वाटर लूज कर रही हैं, उतना ही साइटोप्लाज्म, गाइस फोकस, उतना ही साइटोप्लाज्म सेल वॉल को वाटर लूज करेगा, राइट? अब इससे हमारे पास वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। अब इसको देखो, कहने का मकसद क्या है, अगर हम इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, जितना वाटर this spongy mesophyll is losing towards the cell wall, it's going to get through osmosis the very same volume of water from an adjacent cell. This particular cell is going to this the second spongy mesophyll cell is going to get water molecules from the mesophyll cell. The first mesophyll cell is going to get water from the second, and the second from the third mesophyll cell. अब हसान तुम्हारी वाली बात कि सर फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग दिस वाज सेल सी, तो सेल सी के पास वाटर कहाँ से आ रहा है? The water molecules in the last cell will be taken from the top of the xylem vessel. So now the xylem vessel is losing water molecules to the mesophyll cells, and from the mesophyll cells or directly to the spongy cell as well. These water molecules are going towards the spongy mesophyll cells, and the spongy mesophyll cells are losing the water molecules to the cell wall through osmosis. And finally, ultimately, the cell wall is losing water to the air, dry air in the air spaces by evaporation. Right? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Make sense? Do we understand this? Up now, because of this,
at the top of the xylem vessel, because the xylem vessel just lost water to the leaves, right? तो at the top of the xylem vessel water की volume तो कम हो जाएगी, right? और हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा एट द टॉप? कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। नीचे at in the very same xylem vessel, this xylem vessel is being filled up with water molecules from the root hair cells, right from the bottom. So what's going to happen? At the bottom of the xylem vessel, the hydrostatic pressure is going to be high. So water molecules from the bottom of the xylem vessels are going to move from a region of higher hydrostatic pressure towards the top, towards a region of lower hydrostatic pressure by the process of mass flow. अब ये जो पुल जनरेट हो रहा है ना, बिकॉज दिस मास फ्लो जनरेट हो रहा है, दिस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट? तो हमारे पास सॉरी तो हमारे पास ये जो पुल है, दिस पुल इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपिरेशन पुल। मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली। डू वी अंडरस्टैंड दिस? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? कोई मसला? डज एनीवन वांट मी टू रिपीट दिस वंस अगेन? तनीषा बेटे, ताहा, सैयदा बेटे, फवाद, all good? Okay, all right, good enough. So now let's talk about ये हमारे पास जो वाटर की मूवमेंट हो रही है, अब इसका लेट्स राइट अ होल नोट ऑन इट। ठीक है, देखो, इफ द ह्यूमिड एयर इज गोइंग आउट तो एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी क्या हो गई? बढ़ गई, राइट? द ड्राई एयर इज टेकन अप बाय द लीव्स एंड इज रिप्लेस्ड विद व्हाट? ह्यूमिड एयर इन द एटमॉस्फेयर। डू वी गेट दिस? ऑनलाइन, अच्छा चलो, अब इसको लिख लेते हैं। तो नाउ इफ यू राइट नोट ऑन ट्रांसपिरेशन तो हम बताएंगे। सो विल स्टार्ट विद के as the dry air diffuses into the air spaces, it causes it causes evaporation of water from the cell walls of the spongy mesophyll, converting into conceivably air, humid air that is diffused out into the atmosphere and replaced with dry air in the air spaces again। इस वाली लाइन को देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारे पास ड्राई एयर अंदर जा रहा है और वो एवेपोरेशन करवा के ह्यूमिड एयर में कन्वर्ट हो रहा है, as this humid air is going out, it would once again be replaced with dry air। मतलब ह्यूमिड एयर बाहर चली गई और उसकी जगह अंदर दोबारा क्या आ गई? ड्राई एयर आ गई। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, कम बैक हियर। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कहा द एवेपोरेशन ऑफ वाटर कहाँ से? फ्रॉम द cell walls of
spongy mesophils causes, or rather, decreases the water potential of spongy mesophils। कि भाई हमारे पास स्पंजी mesophils का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। So what is spongy mesophils and the adjacent cells, मतलब जो बराबर बराबर वाले cells हैं, causing water to move into the mesophyll cells from the top of the xylem vessel through what? ऑस्मोसिस। के भाई अब हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अंदर वो मेसोफिल सेल्स के अंदर मूव कर जाएगा। सैम विल टॉक अबाउट दैट बेटे। ऑलराइट, अच्छा जी। नाउ उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, एज द water is removed from the top of the xylem vessel, it decreases its कौन सा वाला pressure, hydrostatic pressure, causing water molecules along with dissolved mineral ions to move as a whole body from the bottom where the hydrostatic pressure is high towards the top where the hydrostatic pressure obviously is low via mass flow। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Apparently Hassan, yes, we would have to learn all of this by heart, या तो you know they are going to ask you about the whole process या फिर bits and pieces के अंदर वो पूछ रहे होंगे। ठीक है, so this is how this goes। यहाँ तक कोई मसला किसी को? Symbols like what? Height, we usually cannot in the exam, we cannot at this point, we cannot। अगर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बजाय HP नहीं लिख सकते। मेक सेंस? यहाँ तक कोई मसला? वाटर वो AS में बना सकते हैं बेटे, O लेवल्स में नहीं बना सकते बेटा। हाँ, एरोस वगैरह बना सकते हो, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि मतलब यू राइट द होल थिंग, यू राइट द होल थिंग। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला? आगे चलें। ऑलराइट, आगे चलें भाई। मूविंग ऑन नाउ, अब देखो, ट्रांसपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इसके अंदर कोई एनर्जी यूजअप नहीं हो रही, बट इट्स स्टिल देयर आर थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस दैट आर एक्चुअली गोइंग ऑन। नंबर वन, डिफ्यूजन ऑफ ड्राई एयर इन, ह्यूमिड एयर आउट। नंबर टू, osmosis, movement of water molecules from the surrounding mesophyll cells towards the spongy mesophyll that is losing water to its cell wall. And number three, hydrostatic pressure gradient, water molecules xylems के नीचे से from region of lower hydrostatic pressure they're going upwards towards the region of higher hydrostatic pressure। Make sense? तो हमारे पास ये तीनों processes जो है ये passive processes हैं, they do not require energy। All right,
अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास क्या होता है कि since it's a passive process, it could be affected by external changes or external factors. Now, what we need to know is what are those external factors that affect the rate of transpiration? So let's talk about them. हम लोगों ने कहा factors affecting, yes, human bones can be used as fossils. The rate of transpiration, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटे, एक चीज देखो, सबसे पहली चीज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन कॉन्सेप्ट, उससे हमारे पास बाकी सारी चीजें वो हो जाएंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट is going to affect the rate of transpiration is going to be the number of what open stomata. जितने गार्ड सेल्स हमारे पास टर्जिड होंगे उतना हमारे पास स्टोमेटा, और जितने द मोर द नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा, इसकी वजह से क्या होगा, द मोर द ड्राई एयर एंटरिंग इनसाइड, राइट। आइए हम लोग इसको लिखते हैं, द मोर द एंट्री ऑफ ड्राई एयर ऑन द इनसाइड। जितना ज़्यादा ड्राई एयर अंदर की तरफ मूव करेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा एवेपरेशन होगी, और जितनी ज़्यादा एवेपरेशन होगी उतना रेट ऑफ ROT मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, राइट, मेक सेंस, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब कब होगा, मैंने कहा भाई सबसे पहला फैक्टर जहां ये इंक्रीज होगा दैट इज गोइंग टू बी हाई लाइट इंटेंसिटी or an increase in the light intensity. Why? Because at high light intensity, the plants carry out photosynthesis, and for photosynthesis, besides light and water, they also need carbon dioxide. So they have to carry out, they have to open more number of stomata, so more carbon dioxide molecules could go in, right? तो जितना हमारे पास लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा होगा। जितना ओपन स्टोमेटा होगा उतनी ज्यादा हमारे पास एंट्री ऑफ ड्राई एयर होगी, लेकिन प्रोवाइडेड कि भाई बाहर हमारे पास ड्राई एयर भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादा एवेपोरेशन होगी, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, द सेकेंड थिंग, टेम्परेचर। तो वो जो टाइम ऑफ द डे वाली बात थी ना मेरा बेटा, वो इसके अंदर आ जाएगी फवाद। ठीक है, ड्यूरिंग द डे बेटे, ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है ना रेस्पिरेशन के साथ साथ। आएंगे बच्चे, विल टॉक, अब्दुलरहमान विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी बेटे। अच्छा जी, टेम्परेचर, अब देखो, द मोर द टेम्परेचर, द मोर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, राइट। किस चीज की डिफ्यूजन हो रही है, डिफ्यूजन ऑफ ड्राई एयर इन एंड ह्यूमिड एयर आउट, राइट। टेम्परेचर से हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, सो मोर ड्राई एयर वुड बी एंटरिंग एंड मोर ह्यूमिड एयर वुड बी लीविंग आउट, एंड रेट ऑफ एवेपरेशन भी हो जाएगा। जितना ज़्यादा हमारे पास ड्राई एयर अंदर जा रहा होगा द मोर द एवेपोरेशन, और जितनी ज़्यादा एवेपोरेशन हो रही होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नो, नॉट एडिशन इक्वेशन बेटे। तीसरी चीज़ बेटे, हाई विंड स्पीड। जितना तेज हवा चल रही होगी उतना ही ज्यादा ह्यूमिड एयर आगे मूव कर जाएगी एंड इट विल बी रिप्लेस विद ड्राई एयर। देखो उसका फिनोमेना बिल्कुल वैसा ही है कि if I would, hang my clothes on the line, right? So are they going to get dried up faster if there is high wind speed, or are they going to get dried up faster if there is going to be low wind speed, right? जब हवा तेज चल रही होगी, because it's going to take the moisture away, और
अगर हवा और ड्राई हवा तेज चल रही होगी तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर हैज नो इफेक्ट बेटर। तो हम लोगों ने कहा द मोर द विंड स्पीड, द मोर मॉइस्चर टेकन अवे and replaced with what? With dry air. Hence, the more dry air, the more the evaporation, the more the rate of transpiration. ठीक है, अच्छा जी, फिर एक आखिरी चीज, ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ड्राई एयर कम हो लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, so what's going to happen? There is going to be less entry of dry air. जब ड्राई एयर कम जाएगी तो हमारे पास एवेपोरेशन भी कम होगी, एंड द इट विल आल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देखो स्टोमेटल डेंसिटी नहीं, नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा अब्दुलरहमान। तो हम लोगों ने वही वाला पॉइंट्स में रख लिया, नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा। फॉर एग्जांपल बेटे, आप लीफ कैन हैव thousands thousand stomata on the lower epidermis for example, ठीक है, लेकिन out of those thousand only two of them are open। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऑल दो अगर तुम इस तरीके से कंपेयर कर रहे हो कि भाई इफ आई एम कंपेयरिंग टू डिफरेंट लीव्स, one which has more 500 open stomatas and there's another let's say leaf which has about only 3 open stomata, तो जितना हमारे पास स्टोमेटा का नंबर, the number of the more the number of open stomata, the more the transpiration is going to be, right? हाँ ऑब्वियसली, अगर वाटर वाटर की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना सॉइल के अंदर, अगर वो ही नहीं होगी, द प्लांट इज गोइंग टू लेट्स से इट्स गोइंग टू विल्ट, every cell is going to become plasmolized, all the tissues in the leaf will become flaccid and the whole plant will wilt। ठीक है, तनीषा हम लोग पानी देना भूल गए थे इसलिए। they're not limiting factors थोड़ी है चंदा। ठीक है, आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो, अब एक चीज देखो, हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस ट्रांसपिर, और हाउ डिड वी फाइंड आउट कि अच्छा भाई ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा या कम होगा। सो आई थिंक वी हैव अ पोटोमीटर। डू आई हैव अ पिक्चर ऑफ अ पोटोमीटर राइट हियर? आई शुड हैव। नॉट हियर, इट्स नॉट हियर। आई थिंक मैंने एस लेवल वालों को करवाया तो था, शुड बी हियर समवेयर। डू हैव अ पोटोमीटर हियर? पोटोमीटर, पोटोमीटर, नो पोटोमीटर। चलो कोई मसला नहीं, लेट्स कॉपी इट। So now when we know कि भाई what are the different environmental factors that are going to affect the rate of transpiration, हम लोगों ने rate of transpiration तो निकालना सीखा ही नहीं। So whenever we talk about rates of transpiration, बच्चे लोग rate हमारे पास क्या होता है? Any work done over time, right? तो rate of transpiration के अंदर हमारे पास work done क्या होगा? हम लोग कहते हैं rate of transpiration is equals to volume of water lost। नहीं, नॉट पावर, वो वाला वर्क डन नहीं है, वर्क डन का मतलब कोई से भी काम हो रहा है, बेसिकली वन ओवर टाइम, राइट? वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट, और वॉल्यूम किस में लोगे तुम लोग? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। पर यूनिट वॉट? पर यूनिट टाइम, और टाइम किस में आ जाएगा? मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। क्योंकि हम लोग मिनट को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने इन्वर्स का साइन लगा दिया। अब हाउ डू वी डू इट? हाउ डू वी कैलकुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? we use an apparatus that we call as a potometer, and a potometer looks like this। अब इसको समझो कि how is the potometer working। ठीक है, देखो होता हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब है, राइट हियर वी हैव अ कैपिलरी ट्यूब, और लेट्स से इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
जो कि यहां तक है अभी। ठीक है, अब मुझे ये सेटअप करना है। अब मुझे ये वाला apparatus सेटअप करना है। ठीक है, what else does it have besides a capillary tube? It has a reservoir, it has a what? It has a tap right here, a tap or a valve, right? Now, on the other side, what we do is we take a rubber bung or we take a cork, we drill a hole in it, and we put a particular plant. Now we put the plant or cut the plant at the root so that it's slanted like this, right? इससे हमारे पास कौन सी वाली वेसल एक्सपोज हो जाती है? जाइलम वेसल एक्सपोज हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है? इनिशियली मैं क्या करूंगा? मैं इस टैप को ओपन कर दूंगा। When I'm going to open the tap, the water is going to come down. When the water will be applying pressure on at the bottom, वो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जितना भी वाटर है उसको किस तरफ पुश कर देगा? वो फिल करता रहेगा until the capillary tube is filled with water all the way towards the end। ठीक है, तो एक चीज देखो बच्चा लोग, जब प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है तो ये सारा वाटर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जा रहा है। ठीक है, अब then what we are going to do is we're going to close this valve. We are going to close this valve. And I'm going to expose this particular plant to a particular condition, चाहे वो हाई विंड स्पीड हो, हाई लाइट हो। मैंने ऐसे दो एपरेटस बना लिए, एक को लो लाइट इंटेंसिटी में रखा, दूसरे को हाई लाइट इंटेंसिटी में रखा, प्रोवाइडेड कि दोनों के पास बाकी सारी चीज़ें सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, ह्यूमिडिटी भी सेम हो, विंड स्पीड भी सेम हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बस लाइट इंटेंसिटी अलग अलग हो। अब एक चीज़ देखो, once I close this tap now, all of this apparatus becomes what? Airtight. अब क्या होगा? When I'm going to provide it with light, what's going to happen? The leaves are going to start with transpiration. अब क्या हुआ? जितना water ये leaves lose कर रहे हैं, right? जितना water ये leaves lose कर रहे हैं, उतना ही water molecules इस particular beaker से xylem vessel uptake कर रही है, right? अब मेरे पास प्रेशर इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। नाउ इफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग अप, दे आर गोइंग टू ड्रैग द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हियर। अब ये टैप तो बंद है ना, अब ये वाला टैप हम लोगों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब इस रेजरवॉयर से और पानी नहीं आ सकता, तो ये जो ड्रैग है ये किस तरफ लगेगा? ऑन दिस कैपिलरी ट्यूबिंग। अब इस कैपिलरी ट्यूबिंग से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड मूव करना शुरू कर देंगे। Now I'm going to calculate कैसे कितना volume of water move करा। For example, I carried this experiment out for कितनी देर? For 30 minutes। 30 minutes में मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ जब मैंने कैलकुलेट करा तो इट द प्लांट वो लॉस्ट 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन 30 minutes एट हाई लाइट इंटेंसिटी। और जब लो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल उसने सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब करा। तो क्या मैं दोनों की रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन निकाल सकता हूँ? एट, अब इसको देखो, एट लो लाइट इंटेंसिटी for 30 minutes the plant lost 5 cm cube of water, right? At high light intensity the plants lost 15 centimeter cube of water in the very same time। तो अब अगर हम लोग इनके रेट्स कैलकुलेट करें, ये क्या हो जाएगा? 1/5, 6 और 30, और तो 1/6 कितना होता है? 0.16। 0.17 कर लेते हैं। यूनिट्स क्या आ जाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर इतने कितना लूज करा? 15 सीएम क्यूब। 1/2, 1/2 इज 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किधर ज्यादा थी? लो लाइट इंटेंसिटी के अंदर या हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर? राइट, हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर। इज एवरीवन गेटिंग दिस?
अब इससे हमारे पास ना वी थ्रू पोटोमीटर्स वी कैन सेट अप डिफरेंट कंडीशंस एंड वी कैन फाइंड आउट द रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। हाँ, ऑल्दो मैंने इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ लाइट इंटेंसिटी चेंज करी थी, every other factor that is going to affect the rate of transpiration should remain the same। दोनों के अंदर ये कंट्रोल्स और वेरिएबल्स आ जाएंगे हमारे पास। दोनों उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर सेम होना चाहिए, विंड स्पीड सेम होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड, मैं दो पोटोमीटर्स बनाऊंगा, एक को हाई विंड स्पीड पे रखूंगा, दूसरे को लो विंड स्पीड पे रखूंगा। हाउ एम आई गोइंग टू कीप चेंज द विंड स्पीड बाय यूजिंग अ फैन। एक फैन को मैं लो स्पीड पे चला दूंगा, एक को हाई स्पीड पे चला दूंगा, लेकिन उन दोनों के अंदर मैं सिर्फ विंड स्पीड चेंज करूंगा, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम होनी चाहिए। ऑल राइट, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन नहीं करते। यू नो दे डोंट वांट टू लूज वाटर, क्योंकि उनके पास इन्वायरमेंट के अंदर ही बहुत कम पानी है। Those plants are called as xerophytes. Now, those plants have certain adaptations against transpiration. अब वो क्या है? We leave that for the next class. In the next class, we'll just get done with transpiration, inshallah. Xerophytes हम लोग कर लेंगे, and then we'll talk about phloem a bit. Phloem थोड़ा सा है, xylem और phloem को compare करेंगे, and we'll be done with it by the next class. I hope you guys have a good night.